Hello everyone, welcome you all to my channel. Today, in the part 12 of human reproduction, we are going to learn fertilization process in humans. Okay, so here's a simple definition of fertilization, that is the process of fusion of male and female gamete. Okay, fusion of male and female gamete is called fertilization. So both these gamete, that is sperm and the ovum, fuses and they form a diploid cell. This cell is called zygote. Okay, so fertilization result in the formation of zygote. Now here the question comes is that in which part of the fallopian tube does fertilization takes place? So the answer is in the ampulla region. Okay, you all are well aware of that fallopian tube contains three regions. They are infundibulum, ampulla and the isthmus. Okay, so fertilization occurs in the ampulla region. It is very important, learn this. Okay, so next is what we call insemination. What is this? It is a discharge of the semen in the vagina. Okay, in the vagina of the female. Okay, so insemination is the process of discharge of the semen in the female vagina. So when the semen is discharged, many sperms enter, right? But only around 100 reaches the fallopian tube, जिसमें से भी एक ही स्पर्म फ्यूज करता है ओवम से, राइट? ठीक है, वो हम अभी देखेंगे. So you know that sperm enters the ampulla partly by its own efforts. कुछ तो अपने efforts से ही वो जाता है. You know that sperm is having the tail to move. So it is moving with its own effort. But some of the efforts are also done by the uterus. कुछ efforts uterus भी लगाता है. Uterus और fallopian tube they rhythmically contract and expand so that the sperm reaches this ampulla region. Okay. And you know these gametes, they remain live for 72 hours. Means we can say around 1 to 3 days. They can live for 1 to 3 days only. But they need to be fertilized during first 24 hours. Starting के 24 घंटे के अंदर ही fertilization होना चाहिए. You know that menstrual cycle जो होती है, जो 28 days में complete होती है, इसके mid यानी कि 14th day पर ही secondary oocyte रिलीज़ होता है. ठीक है, ओवरी से सेकेंडरी oocyte 14th डे पे रिलीज़ होता है. अब दैट इज़ द मोस्ट प्रिसाइज टाइम फॉर द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, स्टार्टिंग जो 24 आवर्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस. ठीक है, ओके. सो बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले एक प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटेशन. अच्छा, एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे भी आपको एशियन मिले ना, एशियन वर्ड, एशियन फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन, कैपेसिटेशन, इसका मतलब होता है यहाँ कोई प्रोसेस है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ प्रोसेस. सो कैपेसिटेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द मॉलिक्यूल्स which are present on the sperm head. Okay, there are some molecules which are present on the sperm head, they need to be removed and these are removed by the female genital tract. जो फीमेल का जेनिटल ट्रैक्ट है वो इसमें हेल्प करता है इन मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने में, जिससे कि क्या होता है कि स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो बढ़ जाती है. स्पर्म इज़ नाउ मोटाइल, टू मच मोटाइल एंड इट इज़ रेडी टू फर्टिलाइज दी ओवम. अब ये रेडी हो गया फर्टिलाइजेशन के लिए. ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब होता क्या है फर्टिलाइजेशन में. You know that the structure which is released from the ovary is the secondary oocyte. So this is the secondary oocyte which is having corona radiata. This is a corona radiata layer. Then below to corona radiata there is a zona pellucida, and below the zona pellucida there is a plasma membrane of the egg. ठीक है, ये जो layers हैं ये layers एक बैरियर हैं, रुकावट पैदा कर रही हैं. अब इनसे कैसे निकला जाए? स्पर्म यहाँ पे पहुँच तो गया, अब अंदर कैसे जाएगा? तो सबसे पहला जो काम होता है वो बाइंडिंग का होता है. ठीक है, स्पर्म क्या करता है, स्पर्म जैसे ही पहुँचेगा यहाँ पे, इसका जो हेड है स्पर्म का हेड जोना पेलिसिडा के पास
ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं 3, देयर आर 3 ग्लाइकोप्रोटीन्स. ZP3 जो होती है, इट हेल्प्स इन बाइंडिंग, इट हेल्प्स टू रिसीव द स्पर्म. तो स्पर्म का जो हेड है वो इससे बाइंड हो जाता है. ठीक है. आफ्टर बाइंडिंग, नेक्स्ट is the acrosomal reaction. Next step is the acrosomal reaction. You know that sperm head is having a structure acrosome. ठीक है. ये acrosome जो होता है इसमें enzymes होती हैं. अब there are 3 enzymes very important. First is hyaluronidase, second is corona penetrating enzyme and third is zona lysine. Okay. जो hyaluronidase होती है, जो कोरोना की जो सेल्स होती हैं, दे आर कनेक्टेड विद ह्यालुरोनिक एसिड. यहाँ पे बीच में ह्यालुरोनिक एसिड होता है. इस एसिड को हाइड्रोलाइज करती हैं. ये एंजाइम इस एसिड को हाइड्रोलाइज करती है. देन देयर इज अ कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द कोरोना लेयर. सो दिस लेयर गेट्स एब्जॉर्ब्ड. ओके. एंड देन द थर्ड वन, दैट इज जोना लाइसिन. इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट दिस लेयर, दैट इज जोना लेयर. ठीक है. ये हो गया फर्स्ट स्टेप, दैट इज एक्रोसोम रिएक्शन में. नाउ द स्पर्म रीचेस द थर्ड लेयर, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग. स्पर्म आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास. ठीक है. स्पर्म और एग दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएंगी. दे बोथ गेट फ्यूज्ड. राइट. फ्यूज होने के बाद एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो जाएगी. ओके. अब इससे क्या फ़ायदा है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट? डीपोलराइजेशन की वजह से अब कोई और स्पर्म एंटर नहीं कर सकता. इट ब्लॉक्स द पॉलीस्पर्मी. एक ही स्पर्म एंटर करेगा और नहीं कर सकते अब. ओके. गेटिंग माई पॉइंट? सो फर्स्ट स्टेप इज एक्रोसोम रिएक्शन. नाउ सेकेंड इज द कॉर्टिकल रिएक्शन. जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुई, डीपोलराइजेशन हुआ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? कॉर्टिकल रिएक्शंस होती है. यू कैन सी हियर दीज स्ट्रक्चर्स आर द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ही ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं. दीज ग्रैन्यूल्स रिलीजेस एंजाइम. ये एंजाइम रिलीज करते हैं. दिस एंजाइम हार्डन्स दिस जोना पेलिसिडा लेयर. ठीक है. क्या करते हैं ये? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स एंजाइम रिलीज करेंगे. विद दिस एंजाइम हार्डन्स दिस जोना पेलिसिडा लेयर. इसकी वजह से नाउ देयर इज अ श्योरिटी दैट नो मोर स्पर्म विल एंटर. और कोई स्पर्म एंटर नहीं करेगा. इट ब्लॉक द पॉली एम्ब्रियोनी. राइट. ओनली वन विल एंटर. एज इन व्हेन द स्पर्म एंटर्स, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट वी कॉल द कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस सेकेंड. ठीक है. आपको पता है सेकेंडरी oocyte जो था वो मियोसिस सेकेंड स्टेज पर रुका हुआ था, मेटाफेज स्टेज पे. राइट. तो अब वो कंप्लीट होगी. ठीक है. अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होता है ओवम. दिस इज द सेकेंडरी oocyte. दिस इज व्हाट वी कॉल द ओवम. ठीक है. यहाँ पे क्या हो गया? मियोसिस सेकेंड गेट्स कंप्लीटेड. जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा, इट स्टिमुलेट द मियोसिस सेकेंड टू गेट कंप्लीटेड. मियोसिस सेकेंड में पोलर बॉडी बनेगी, सेकेंड पोलर बॉडी. ये फर्स्ट पोलर बॉडी बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले बन गई थी ना, ये दोनों डीजनरेट हो जाएंगी. ठीक है. स्पर्म का जो हेड है वही रहेगा, टेल वगैरह सब डीजनरेट हो जाएगा. नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल प्रो न्यूक्लियस. ये दोनों के प्रो न्यूक्लियस बन गए. ठीक है. न्यूक्लियस ऑफ द एग एंड द स्पर्म. These pronucleus now come closer to each other. ठीक है. This is the female pronucleus, this is the male pronucleus. They come closer to each other. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप हो गई स्पर्म एंट्री. हो गई स्पर्म एंट्री से मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो गई. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द कैरियोगैमी, ऑल्सो कॉल्ड एम्फीमिक्सिस. इसमें क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ द क्रोमोजोम ऑफ बोथ द पार्टनर्स. दोनों पार्टनर्स के क्रोमोजोम मिक्स हो जाते हैं. ठीक है. This is now they mixes and they form a structure called zygote. Okay, which is having 23 chromosomes from father and 23 chromosomes from mother. Now a first cell of a new individual is formed. नए इंडिविजुअल की पहली सेल बन चुकी है जो कि ज़ाइगोट है. अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्लीवेज होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है. ज़ाइगोट बन गया.
अब क्या होता है, यहीं पे sex of the offspring is identified, or we can say it is decided. If this sperm nucleus is having X chromosome, then the child born is female, because ovum is already having X chromosome. ओवम के पास तो X ही क्रोमोसोम होगा, ओके. फीमेल के पास तो Y क्रोमोसोम होता ही नहीं है. तो जो X क्रोमोसोम, अगर मेल का जो स्पर्म है उसके पास X क्रोमोसोम है, तो जो चाइल्ड बॉर्न होगा वो फीमेल होगा. और इफ़ इट इज़ हैविंग Y क्रोमोसोम, देन द चाइल्ड बॉर्न विल बी दी मेल. ठीक है. XX फीमेल एंड XY मेल, राइट. ओके, everything is clear. Next is what we call species specific. ये क्या चीज़ है? species specific का मतलब है, अच्छा जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक हॉर्स का स्पर्म है. क्या हॉर्स का स्पर्म फीमेल, ह्यूमन फीमेल के ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज दीज ओवम एंड द स्पर्म दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक. यू नो, ओवम के पास, ओवम एक एंजाइम सिक्रीट करता है, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजिन. ठीक है, फर्टिलाइजिन. ये एंजाइम, नॉट एंजाइम, इट इज़ अ प्रोटीन. इट सिक्रीट दिस प्रोटीन. दिस प्रोटीन बाइंड्स विद एंटी फर्टिलाइजिन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द स्पर्म. ठीक है, ये इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्पर्म और ओवम है ये स्पीशीज स्पेसिफिक है. नो अदर स्पर्म विल फर्टिलाइज द फीमेल ovum, female human ovum. Okay, so hope this video is clear to you. If you like this video, please share it with your friends and give your valuable feedback. Thank you.